So we have got integers. Integers may we have signed numbers and unsigned numbers. Unsigned numbers are already done, in which we considered binary to denary, denary to binary, binary to hexa, hexa to denary, binary, then denary to hexa and hexa to denary. Those were the unsigned Yes. numbers. And now we have got signed numbers, in which we have signed and magnitude method and complements. Complements are further be divided into ones complement and twos complement, and this ones and twos complement basically related to hardware implementation for all the mathematical functions. ठीक है? So now first we have to work on sign magnitude method. अच्छा, keeping this in mind, if there is a positive number, if there is a positive number, then that positive number will have the sign and magnitude method, ones complement and twos complement, the same answer. Like if suppose there is plus 17, plus 17 sign magnitude method, plus 17 ones complement and plus 17 twos complement, they will have the same result. ठीक है? Because ones complement में we have to just convert the numbers. So sign and magnitude method and twos complement will get the same answer. ठीक है? In case of what? In case of the plus positive numbers. It would be different if there is a negative number. बात समझ आई? If there's a positive number, sign and magnitude method and twos complement will have the same thing. But if in case of negative number, we have got the different answers. So now moving on to the sign and magnitude method, we have 8-bit word, okay? And in this, the first MSB will represent the sign, that is 0 for positive and 1 for negative, and the rest 7 bits are showing magnitude. Okay? This magnitude will be having the same way of converting the denary to binary conversion. That is basically what? That whatever the number is, you have to add the place values of that number, so that it would be the same number. Like for example, if there is 7, so you have got 4, 5, 6 and 7. You will make 4, 2 and 1 on, and the rest of the bits would be converted to 0. Like 64, 32, 16 and 8 would all be converted to 0. Here would be 0, so 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 would be the sign and magnitude way of representing plus 7. Got it? Yes, ma'am. 0 because of plus sign, and 4, 2 and 1. When you add all these numbers, you will get 7. The rest of the numbers are 0. This is basically called sign and magnitude method, or signed magnitude method. Now we have got 43. To make 43, since this is a plus sign, so we have put 0 over here, and now 43, we will choose those numbers that when further be added will give you the result 43. So we have got 32, 8, 2 and 1. It will give you the result 43. Got it? Yes. And another number we have got minus 258. So if we have got minus 258, because of minus, we have written 1 over here because it's a negative number, and then we will add further numbers so that we can have the result 258. So these are all those numbers. When you add them together, you will get the result 258. Okay? So this is basically the sign magnitude method of converting numbers. अभी नहीं, वहाँ दूसरे रूम में चलो. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल बेटा, मेरी एक कॉल आ गई है. दो. हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे? अभी मैंने तुम्हें बताया एक चीज के प्लस नंबर, प्लस और माइनस हम दोनों का साइन एंड मैग्नीट्यूड नंबर निकालते हैं ना. तो हमने उसके अंदर क्या किया था कि जो माइनस वाले नंबर थे हमने उसके अंदर यहाँ 1 कर दिया था, और प्लस वाले नंबर्स को हमने यहाँ पे 0 कर दिया था. ठीक है? और बाकी नंबर्स को हमने ऐड कर दिया. नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास अब क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट. अब वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या चीज है? देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में वी हैव पॉजिटिव नंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 0, और नेगेटिव नंबर्स जो है वो हमारे पास 1 है. ये तो हमारे पास कंफर्म्ड है. अब हम क्या करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में? व्हाट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग द नंबर्स? फर्स्ट, convert the same thing
like first convert it into sign and magnitude method, and the next step is flip all the numbers. If there is 0, it would be converted to 1, and if there is 1, it would be converted to 0. I am repeating. First, if there is positive number, then add 0, and if negative number, then 1. Then you can have the binary equivalent of the number, that is basically the sign and magnitude method. And the next step is flip all the numbers from 1 to 0 and 0 to 1. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So it's plus 17. Since it is plus, we have written 0. Now we have got 17. To get 17, we have got 16 और 1. 17 हो गए. ये हमारे पास हो गया sign and magnitude method, that is the binary equivalent. Now what would we do? We will convert all the zeros to ones and ones to zeros. तो देखो first position और fifth position would have 0, and that is over here 0, and the rest are zeros that would be converted to 1. This is actually the ones complement. Is it clear? Yes. Okay, so ये हमारे पास second way भी हो गया ones complement का. Now there are few facts that you need to keep in mind. If ones complement is positive, you will get the corresponding negative number, that is plus 17 जो है वो minus 17 आ जाएगा. ठीक है. अगर हम किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमें ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ दे देगा. देखो अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये आ गया, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो मुझे ये दे देगा, वाइस वर्सा. बात समझ आई? तो प्लस का नेगेटिव जी. करूं या नेगेटिव का पॉजिटिव करूं, इट वुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. सही है? समझ आ गई? Yes. अच्छा, आगे चलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा मैं तुम्हें दो मेथड्स बताऊंगी. एक थोड़ा सा लेंथी है और एक थोड़ा सा सिंपल है, कि तुम्हें फौरन से फर्स्ट उससे पता लग जाएगा कि हाँ हमने किस तरीके से करना है. टूज कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है? अगेन आइडेंटिफाइंग वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सही है? अगर ये नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. क्या करना होता है? कन्वर्ट द नंबर टू बाइनरी टू डिनरी, दैट इज साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड. Then get the ones complement, means you have to invert the numbers from 0 to 1 and 1 to 0. Then add 1 to the ones complement on the right hand side. यानी कि अगर तुम्हारे पास ये वाला नंबर है, ठीक है, मैं तुम्हें एक एनोटेट करके दिखा देती हूँ. 1 1 1 1 0 0 1 0, ये नंबर है तुम्हारे पास. ठीक है, इट शोज दैट दिस इज द नेगेटिव नंबर. What we will do, this is ones complement. अभी मैं यहाँ पे प्लस 1 करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 0 + 1 1 1. 1 0 0 1 1 1 1. This is ones complement. Sorry, this is two's complement. now बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने? Yes. I have just added 1 in it. अच्छा, यहाँ पे एडिशन में I'll tell you the addition rule. 1 to the ones complement. हाँ, क्या कह रहे? Divided 1 to the ones complement. हाँ, अभी एडिशन में हमारे पास क्या होता है? 1 + 1 क्या होता है? 2. 2 का बाइनरी क्या होता है? अगर 2 को मैं बाइनरी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो? 0. नहीं, 0. 0 ही होगा मैम. ऐसे लिखते हैं ना, 1 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2. बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 0. 1 0. समझ आई? समझ आई जी. कैसे आया ये? तो मैम अगर 1 प्लस, अगर जैसे ही आपने जहाँ एडिशन किया है वहां अगर हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 होता तो अगली डिजिट हमारी 0 हो जाएगी अगर हाँ 1 हो वो. हाँ हाँ, वो वाली डिजिट इटसेल्फ 0 हो जाएगी और फिर नेक्स्ट जो है वो 1 हो जाएगा. अगर 1 + 0 होगा तो हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट वैसे तो 1 आएगा, और बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 0. नहीं, 1 + 0 तो 1 ही होगा ना. और अगर हम इसको बाइनरी इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा.
1 आ जाएगा, तो नो कैरी, सिर्फ हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, कैरी में हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी में 1 आएगा और आंसर हमारे सम जो है वो 0 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे 0 लिखेंगे बट कैरी ठीक हमारे है पास ठीक 1 आ जाएगा। समझ आई? ठीक है मैम, समझ गया समझ गया। ठीक है। अब 0 + 1 के अंदर यही रूल होगा कि सम तो हमारे पास 1 होगा लेकिन कैरी जो है हमारे पास 0 हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी हैव सम, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वर्थ नहीं होगी। तो हमने सारे पॉसिबल चीजें हमने डिस्कस कर ली। 1 + 1 = 2, 1 + 0 1 एंड 0 + 1 1। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन थी, मैंने ये कर लिया। अब मैं जरा इसको क्लियर करती हूँ। हम एक और देखते हैं, 1 1 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एक नंबर आ गया। ठीक है, अब मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1 + 1 = 2, 2 इज इक्वल टू 1, और 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। और वहाँ 1 कैरी हो जाएगा। अब सही है। 0 + 0, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 नीचे 2, 0 आएगा, ऊपर 1 हाँ, कैरी हो जाएगा मैम। यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगी, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 1 0 1 1। समझ आई? जी। सो दिस इज द केस कि हम क्या करेंगे कि 1 ऐड कर देंगे इसके अंदर, जो कि हमें रिजल्ट दे देगा, जो क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, 2's कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया तुम्हें? जी मैम। ओके। मैम आज आपने प्रोसेसर फंडामेंटल्स नहीं करवाने थे करवाने पिछली थे क्लास में, लेकिन कहा वो था आपने। दूसरा वाला बच्चा आया ही नहीं, तो वो आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारा कंटिन्यू करा दूं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूं जो प्रीवियस रह गया है। वो ठीक है मैम। वो बच्चा आता होता तो फिर मैं तुम्हें नया चैप्टर उसके साथ ही करा देती, ये तुम्हारा मैं रिवीजन पे लगा देती, लेकिन वो नहीं आया। एनीवेज, एडवांटेजेस देख लो हमारे पास। जो टूज कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट के कंपैरेटिव मोस्ट वाइडली यूज जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। उसका रीजन ये होता है कि ये हमें वो रिजल्ट देता है जो कि हमारे पास क्या करता है कि हमें जो रिजल्ट होता है एडिशन का वो ज्यादा क्लोजर होता है। ठीक है, यानी वो हमें एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें किसी भी नंबर्स को। बात समझ आ रही है? वंस कॉम्प्लीमेंट हमें थोड़ा डिविएट कर देते हैं आंसर को, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें बिल्कुल परफेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट देता है। एंड दैट इज द रीजन वी यूज टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज इन केस ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ, ये मैंने लास्ट क्लास में तो नहीं कराए थे प्रीफिक्सेस? नहीं मैम, नहीं करवाए थे। अच्छा, एक मिनट, मैं अपना ये वाला पार्ट इसको, डेसिमल एंड बाइनरी प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, हम मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, और वो जब डेटा स्टोर होता है दैट वुड नीड अ यूनिट, एंड दैट यूनिट बेसिकली इज मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारे हमारे कुछ यूनिट्स थे, किलोबाइट। अब ये यूनिट्स हमारे पास क्या थे कि हमने राउंड ऑफ कर लिया था, हमारे पास 1 किलोबाइट = 1024 बाइट्स होते थे, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ कर देते थे इन अ वे दैट इट वुड बी कन्वर्टेड टू 1000 बाइट्स। ठीक है, अब 1000 बाइट्स में हमारे पास क्या था कि वी हैव गॉट राउंडेड ऑफ वैल्यूज, और जो हमारे इक्विवेलेंट था फैक्टर्स ऑफ 10 के। ठीक है, अब हमें उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करना था, तो व्हाट वी डिड, हमने इसको बाइनरी प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये तो डेसिमल प्रीफिक्सेस थे because they were the factors of 10, but now we have got binary prefixes. These are basically kilo has been converted to kibi, mega has converted to mabi, giga gibi, and tera tebi. And these are all the factors of 2 raised to the power 10, 20, 30, and so on. So now if we get 2 raised to the power 10, it would give you the accurate value 1024 bytes. ठीक है, तुमने ये पढ़ा होगा किलो, मेगा, गीगा। अब इसी का बाइनरी प्रीफिक्स आ गया, दैट इज बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ 2 raised to the power 10. क्लियर? यस मैम। ओके, अब हमारे पास सपोज अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये बाइट्स की फॉर्म में, इसको हमने किबी बाइट के अंदर करना है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 1024 करोगे इंस्टेड ऑफ 1000, बिकॉज 1000 से करोगे तो वो तुम्हें किलो बाइट देगा, बट अगर आप 1024 से करोगे तो वो तुम्हें देगा किबी बाइट। इज इट क्लियर? यस। ओके,
सो ये 2 क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, यू कैन सॉल्व देम एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू सॉल्व यू कैन गेट द आंसर. आप इसको अपने पास सेव कर लो. हो गया? जी मैम. Okay, let me just